بلکہ اس کا بوجھ ہم عام صارفین پر پڑے گا. تو یہی بات آج وزیر خزانہ کر رہے تھے. لیکن سب سے پہلے آج وزیر اعظم صاحب کا دورہ بلوچستان، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل صاحب. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب ہمیں وقت دینے کا. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہاں سن سکتا ہوں بالکل. گورنر صاحب آج وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود تھے، گفتگو ہوئی. میں سب سے پہلے بلوچستان، ایک جنرل سوال ہے کہ کتنے ہی سال ہوئے، کتنی ہی حکومتیں آئیں بلوچستان کو، کتنے ہی پیکیجز دیے گئے، لیکن بلوچستان میں جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو پائی. اور بار بار جب بھی کوئی ایسا وزٹ ہوتا ہے تو ہمارا یہی سوال ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ بلوچستان پنجاب یا دیگر صوبوں کے برابر یا پیرالل نہیں آ پایا. آپ بتا پائیں گے کہ کیا وجہ رہی ابھی تک؟ بنیادی طور پر وجہ تو ایک یہ ہے کہ اتنے فنڈ ہم کو کبھی نہیں ملے جتنے ملنے چاہیے، چونکہ 43% ہمارا رقبہ ہے. فنڈ لاسٹ نفسی میں ہمارا گزارا کر گئے، لیکن فنڈنگ آج بھی اب ٹل دی مارک نہیں ہے جتنے دوسرے صوبوں کے ہیں. اگر آپ سندھ کے دیکھ لیں، اب اگر آپ کے پی کے دیکھ لیں، آپ پنجاب کا دیکھ لیں، ہم تو ان کے سامنے بالکل میگر اماؤنٹ رکھتی ہے. دوسرے یہاں ہماری اپنی انٹرنل کرپشن نے بھی تباہی مچائی ہے. وہ سارے ہم لوگ اس کرپشن کی وجہ سے ہم لوگوں نے ہر چیز خراب کر دی، ہر چیز تباہ کر دی. یہ جو بھی پروجیکٹ پیسے آتے ہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. یہ دو مین وجوہات. حالانکہ وزیر اعظم صاحب آج آئے ہیں اور انہوں نے بڑی فراخ دلی سے جو ایک درینہ مسئلہ تھا بجلی کا، نئے گورنمنٹ سبسڈی دے سکتی تھی. ابھی تک 400 ارب 500 ارب روپے سبسڈی گورنمنٹ دے چکی ہے اس کے اوپر. تو یہ ابھی جو مزید دینا ہمارے وس کا کام ہی نہیں تھا. یہ تو 2 سال میں ہماری انشاءاللہ یہ ریکوری ہو جائے گی. جو آج ہم یہ انسٹال کر رہے ہیں، اس کو سولر انسٹال کر رہے ہیں لوگ زمینداروں کے لیے، اور زمینداروں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا گورنر صاحب، بلوچستان مطلب تقریباً آدھا پاکستان ہے رقبے کے لحاظ سے، اور زمین ہے، اگر کام کیا جائے تو بہت وہاں پہ خوشحالی آ سکتی ہے، بلکہ پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے اگر بلوچستان میں ٹھیک طور پہ کام ہو. تو فوکس کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں حکومت کا، اور آپ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، آپ کی کیا پرائیورٹی ہوں گی کہ کس طریقے سے بلوچستان میں ترقی ہو، چاہے زرعی ترقی ہو یا صنعتی؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کو اپنی اصلاح بھی کرنی ہوگی. ڈیفینیٹلی کنزرویٹو گورنمنٹ جو آئے ہیں، یہ کرپشن کے نظر ہمارے فنڈز ہوتے رہیں، یہ بھی بڑی واضح ایک ہمارے سامنے مثال ہے یہ. اور دوسرا فیڈرل گورنمنٹ کو اور دوسرے صوبوں کو فیڈریشن کا حصہ اس کو سمجھنا چاہیے. بلوچستان کو ایٹ لیسٹ بلوچستان کو اتنے فنڈز ملنے چاہیے جو ہم صرف آبادی سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. فنڈ یہاں رقبے سے جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پر کلومیٹر بہت کم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی پراپر ترقی نہیں ہو سکتی. دونوں اقدامات کرنے ہوں گے. این ایف سی اوارڈ کو بھی ریوائیو کرنا پڑے گا، اس میں رقبے کے ایلیمنٹ کو بھی ڈالنا پڑے گا، اور ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہوگی. ٹھیک. گورنر صاحب، بلوچستان میں مطلب حکومتیں کئی آئی ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت، نیشنلسٹ پارٹیز کی حکومت، اس سے پہلے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی حکومت، مطلب ہر طرح کے جو ہے وہ حکومتیں یہاں پہ آ چکی ہیں. مطلب ظاہری بات ہے کسی نے تو سوچا ہوگا کہ بلوچستان کے لیے کام کیسے کیا جائے. اس وقت جو اب حکومت ہے، کیا منفرد ہوگا، کیا مختلف ہوگا گزشتہ حکومتوں کے مقابلے میں؟ یہ دیکھو، اس حکومت کا تو ابھی امتحان آئے گا، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. لوگ تو ہم وہی لوگ ہیں، دیکھنا ہوگا یہ حکومت ابھی کتنی ڈیلیور کرتی ہے. حکومت کے اوپر بڑا امتحان ہے، کیونکہ کرپٹ سسٹم کو صاف کر کے چلانا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ حکومت کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا لازمی. ٹھیک. اور یہ جو ایک آئیڈیا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ 55,000 کے قریب جو ٹیوب ویلز ہیں جن سے زراعت کا دار و مدار ہے بلوچستان کی، ان کو سولر پہ کنورٹ کر دیا جائے. 50 سے 55 ارب روپے کی اس پہ لاگت آئے گی. آپ کے خیال میں یہ کتنی جلدی منصوبہ مکمل ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کیونکہ بلوچستان کا اگر آپ دیکھ لیں تفصیل میں جائیں، بلوچستان میں آپ کا کوئی روزگار نہیں. یہاں لینڈ بیرن پڑے ہوئے ہیں. جو بھی ٹیوبلز کی ایگریکلچر ہے اسی سے ہی سارا بلوچستان چل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی
उन्हीं इसी एग्रीकल्चर से फिर बलूचिस्तान की लाइफ स्टॉक का भी मुस्तकबिल बंधा हुआ है। जबकि हमारे मुल्क का आपने अगर देखा होगा कि ये बिजली का निज़ाम जो है वो तो इंतहाई ख़राब है। वो बिजली का निज़ाम दुरुस्त करना होगा, तो जब ये सोलर लगेंगे बिजली का निज़ाम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा उसके साथ, और ये बागात और इनकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। एक तो एग्रीकल्चर लोगों को रोज़गार मिलेगा, जी और जो आज बिल्कुल नान नफ़के के मोहताज हो रहे हैं क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग इतनी है कि उनके बागात को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक। एटलीस्ट सोलर से ये होगा, वो कफील हो जाएंगे। अच्छा, जब ये हम और सवाल सेकंड करते ये हैं इनको वापदा हम हुकाम से, इनको हम पैकेजेस दे रहे हैं, ये खुद लगाएंगे। उम्मीद यही है कि 2 महीने 3 महीने में ठीक। ये सब इनके लग जाएंगे। हम इनको पैकेजेस दे रहे हैं। अच्छा, लोग बिल क्यों अदा नहीं करते? जब ये सवाल किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से तो वो ये कहते हैं कि जी हम लोड शेडिंग इसलिए करते हैं या वहाँ पे इसलिए हमारा काम है कि वहाँ पे जो एक तादाद है, बड़ी तादाद लोगों की, चाहे वो कमर्शियल हों या डोमेस्टिक हों, वो बिल अदा नहीं करते। इसकी क्या वजह है? बिल इतने ज्यादा है कि कोई अदा नहीं कर सकते। बाग की आमदन से बिजली का बिल ज्यादा हो जाता है। वो डेफिनेटली वापडा का भी ये शिकायत बिल्कुल सही है, क्योंकि आईपीपी जब से आ गए हैं फिर वापडा के बिल्स अगर आप देखें मैनिफोल्ड कर गए। वो किसी इदारे की भी कंट्रोल में नहीं है। जो वापडा का नर्ख है उससे जमींदार पैसे तो नहीं पूरा कर सकता है, ना अपने ट्यूबवेल का बिल पूरा कर सकते। हमारे गवर्नमेंट के लिए वाटर सप्लाई स्कीम चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इतना मुश्किल, इतने महंगी बिजली जो है वो खरीद करके फिर उसके साथ जमींदारी करना वो अनवायबल हो जाते हैं। वो भी ये कि 500 से लेकर के 1000 फुट तक मुख्तलिफ एरियाज में हमारी ट्यूबवेलों की गहराई है। उसी के हिसाब से फिर उनके मोटर्स भी इतने हैवी लगे हैं जो कि अनवायबल हो अच्छा जाते गवर्नर हैं। साहब, एक सवाल है यहाँ पे बिजली के आजकल हवाले जो से, बिजली के सोलर हवाले से बिजली सवाल जो करना है, चाहूँगा। मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि तकरीबन 1100 से ज़्यादा स्मॉल और मीडियम साइज डैम्स हैं जो बलूचिस्तान में इस वक्त ऑपरेशनल हैं, तो उनके ज़रिए कभी कोई आइडिया नहीं हुआ कि बिजली मुतबादल पैदा की जाए आसपास के इलाकों में? क्योंकि बड़ा उन्होंने बलूचिस्तान नहीं की नहीं, वो तरक्की में ऐसे डैम्स नहीं है। डैम्स जो भी बनाए हुए हैं उसमें बिजली पैदा करने के लिए डैम की हाइट भी चाहिए होगी। इधर एक भी ऐसे डैम नहीं है कि वो बिजली पैदा कर सके। वो क्योंकि हाइट से प्रेशर बनती है। कम से कम 300 फुट डैम की हाइट हो तो फिर उधर से बिजली की पैदावार कमर्शियल लिहाज से वाइबल शुरू हो जाती है। यहाँ की जो भी डैम है, सुबकजी बहुत बड़ा डैम है, उसकी भी 100 फुट ऊंचाई है, 110 फुट ऊंचाई है। ठीक। किसी डैम की 70 फुट है, किसी उधर से वो प्रेशर ही नहीं बनता है जिससे मोटर घुमा सकें और बिजली बना सके। वेरी राइट। अच्छा, बलूचिस्तान में एक तो ये मसला है और दूसरा बहुत बड़ा एक मसला है बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि वहाँ पे आए दिन हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि नवाई इलाकों में अगर दूसरे किसी इलाके से लोग गए हैं, अभी रिसेंटली हुआ कि कुछ ऐसे वहाँ पे हजाम थे जिनको कत्ल किया गया, ऐसे अलहदगी पसंद हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं जो वहाँ पे ऐसे इलाकों में ऑपरेटिव हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा एक एक्सपेंस है कि सिक्योरिटी के ऊपर जो बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत खर्च करती है। ये मसला आज डिस्कस यकीनन हुआ होगा, तो उस पर थोड़ा सा बताइएगा क्या लाए अमल है इसको ठीक करने के लिए? ये मसला लाजमन डिस्कस हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी का भी हम लोगों का ये है कि हमारा इस वक्त इतना बड़ा मसला भी नहीं है जितना वो मीडिया एक्सप्लॉइट करता है। हाँ, डेफिनेटली सिक्योरिटी का मसला है। यहाँ जो डिफरेंट जगहों पे कत्ल भी हुए हैं, अगवा भी हुए हैं, इस तरह के मसले हैं। ये हर जगह दूसरे सूबों में भी इस तरह मसले हैं, लेकिन इसको भी हम गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हैंडल करें, क्योंकि सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी कोई तरक्की उसके वक्त तक मुमकिन नहीं होगी। ठीक। और ये जो एक अलहदगी पसंद तहरीकें वहाँ पे शुरू हो जाती हैं और उनका गठजोड़ जो है अब वो दहशतगर्द तंजीमों से है, जिस तरह पिछले दिनों आपकी हुकूमत ने वहाँ पे इंकशाफ किया कि जो BLA है उसके ताने बाने जो है वो TTP से जाके मिलते हैं। तो ये जो नेक्सस है, ये जो इनकी ये जो शराकत दारी है, ये कितनी ख़तरनाक है आपके लिए, और सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी विजिलेंट हैं इनको कंट्रोल करने के लिए? ये तो वैसे जिधर भी होता है हमेशा, जो कि इस तरह फाइट कर रहे हो या दहशतगर्द तंजीमें होते हैं, उनकी आपस में नेक्सस होती है।
क्योंकि उनके लिए मुश्तरक दुश्मन जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, या इस वक्त गवर्नमेंट है पाकिस्तान है। उनको जो भी पाल रहा है या जिधर से भी उनको इमदाद मिल रहा है या जिस तरीके से उन सबको एक टास्क दिया गया कि आप यहाँ डिस्टेबिलिटी पैदा कर ले और अमन अमन का मसला पैदा कर ले, इनकी नेक्सस है। हमारे लिए भी ये नेक्सस डेफिनेटली और प्रॉब्लमिस्टिक हो जाता है। तो इसके लिए आपके ख्याल में वफाकी हुकूमत तो अपने तौर पे काम कर रही है, हमारी सिक्योरिटी इदारे भी वहाँ पे बड़े विजिलेंट हैं, लेकिन असल काम वहाँ की पुलिस का और सूबाई हुकूमत का है। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उनकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो उतनी मुतबादल है कि जिससे हम कह सकें कि ये अब सूबाई हुकूमत इस चीज़ को पूरी तरीके से हैंडल कर सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है या पुलिस या लेवीज की इतनी कैपेसिटी है कि इतनी बड़ी जंग लड़ सके। ये सिक्योरिटी इदारों का वाहिद काम रह जाता है। पुलिस तो वो लोकल क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, लोकल डाके माके, इन चीज़ों के हद तक तो वो इफेक्टिव होते हैं, ठीक लेकिन ठीक, इतने बड़ी जो चैलेंजेस होते हैं उसमें फिर पुलिस का कमज़ोर पड़ती है, वो पूरा नहीं कर सकती। सही। और इसमें लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे काम करती हैं तो उनके खिलाफ एक बेजा तनकीद भी होती है, तो ऐसी तनकीद करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बेजा तनकीद जो आप खुद बेजा कर रहे हैं, बेजा तनकीद नहीं करना चाहिए। मजबूरियां भी देखनी चाहिए। इसमें ये मजबूरी भी इंसान देखता है कि इनको क्या मजबूरी आ रही है। हाँ, इस वक्त मेरे हिसाब से काफ़ी ममालिक इसमें इंटरेस्टेड है कि बलूचिस्तान में खसूसी तौर पर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा कर दे, और स्पेशली बलूचिस्तान ठीक में। उसमें दो रास्ते हैं। एक तो ये जो लोग राज पे आ सकते हैं या मुज़ाकरात कर सकते हैं, वो भी एक रास्ता है, लेकिन डेफिनेटली और बकाया अगर कोई लड़ता है, लोगों को मारता है, उनको तो फिर कंट्रोल करना पड़ता है। ये फोर्सेस का ही काम है, कंट्रोल करें। ठीक ठीक। एक आखिरी सवाल गवर्नर साहब, अभी आज वज़ीर आज़म साहब वहाँ मौजूद थे, आपकी भी यकीनन बात हुई होगी। आपकी क्या डिमांड है वफाकी हुकूमत से, या आपने वज़ीर आज़म से क्या दरख्वास्त की होगी कि वो किस तरीके से अपना एक किरदार अदा करें ताकि बलूचिस्तान के ये जो मसाइल हैं, चाहे मुआशी हों या सिक्योरिटी के हों, वो बेहतर तौर पर जल्द अज जल्द वो हल कर सकें? देखो, आज तो वजीर आजम साहब बहुत बड़े पैकेज के साथ खुदा जानता है आया होता है। इतना बड़ा पैकेज बलूचिस्तान को तारीख में बड़े कम मिले हैं। आज तो हम लोगों का मेन ट्रस्ट इसी पे था कि ये सोलराइजेशन के 2-3-4 महीने में सोलराइजेशन किस तरह कंप्लीट कर ले। उसके साथ तकरीबन 5 वफाकी वज़रा भी थे, जो आज मेन ट्रस्ट इसी बात पे था। रह गया ये चीज़, हमने उनको ये बताया है कि मौजूदा जो हमारी फंडिंग सिस्टम है वो बलूचिस्तान की इतने इलाके को कैटर करने के लिए मुश्किल है। वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे थे कि जो फंड हम देते हैं उसका बेहतर इस्तेमाल आप करें ताकि आवाम को फ़ायदा पहुंच सके, या सूबे ठीक, का कोई डेवलपमेंट हो सके, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया और सिक्योरिटी का जाफर। भी उनको हमने जी बताया जी, कि सिक्योरिटी का ये चैलेंज हमारे लिए है, जिसमें हमारे साथ वफाकी हुकूमत और दूसरे भी मदद कर दे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इसमें हम हर तरीके से सूबों की मदद करेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका जाफ़र खान मंदोखेल, गवर्नर बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दौरा किया बलूचिस्तान का, जहाँ पे उन्होंने एक पैकेज का भी ऐलान किया, और उसके साथ साथ जो मुलाकातें हुई उसमें ख़ास तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी डिस्कस हुई। अगले मौजू की जाने बढ़ेंगे। पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म और ज़्यादा टैक्स